Hi viewers, I am here today with my channel the Senior Officer Interview Series. Today I am with Sayyid Akmal Rahim Saab, ex-Chief Conservator of Forest, Punjab. He graduated from Pakistan Forest Institute in Peshawar in 1982-84. His first master's was from Punjab University in Botany. Our guest has the honor to work in the diverse functions and the diverse departments of Punjab Forest, working plan, agroforestry and many more. He will explain and discuss with us during his interview. I would like to request him that today he should share his field experiences with us. Or I should not forget that he has also wrote many books on forestry as well as non-forestry profession. He is the senior and the very renowned astrologist in the country as well. So, sir, Assalamu alaikum. How are you, sir? Wa alaikum salam. Sir. Abu Dara. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. How are you, sir? Thank you very much, Maimuna. You came here for my interview and gave a very large introduction of my characters and the working and other things. But my life, I have passed 38 years in my forest career. So it is not easy to sum up in 30 minutes. Sir, I think that it would be better that I ask you questions so that we can limit our interview. वो इसलिए कि अब टाइम थोड़ा है और वीडियो लंबी हो जाएगी, सो वो हम इसको जनरलाइज तरीके से कितनी जल्दी है वो वाइंड अप करें. सर, अगर आप स्टार्ट करें कि where do you live and where you have your elementary education. देखें मैमुना, मैं अकमल मेरे ट्विन ब्रदर थे ना, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, वो लिख भी रहे, छोड़ गए थे बीच में, उसको मैं मुकम्मल कर रहा हूँ. मेरे फादर की पोस्टिंग पेशावर वर्षा डैम पे थी और वहाँ पे we both born at लेडी रीडिंग हॉस्पिटल. वहाँ पे कैनेडियन थे और वहाँ पे पैदा हो गए. सो वी पास 6 months there. और वहाँ से फिर हम लोग लाहौर आ गए. मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो गई और ही जॉइंट पाकिस्तान फॉरेस्ट कमिश्नर फॉरेस्ट, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि कमिश्नर इंडस वाटर ऑफिस ना. सो हम लोगों ने अपना जो बचपन था ना हमारे दोनों का, इट्स वेरी फेमस. जब जड़वा बच्चे हो ना तो उनको बड़ी इम्पोर्टेंस मिलती है. जब वहाँ पे तो मेरी मदर टोल्ड मी कि व्हेन वी आर रेजिडिंग एट वर्सक डैम, तो हमारे हमसाय में कैनेडियन एक जोड़ा रहता था. तो हमारे घर का नंबर 2 था. तो वो थोड़ा थोड़ा उर्दू भी बोल लेते थे. तो कहती है वो 2 नंबर में 2 काका. तो she specially came to see us. Here I would like to share that Sayyid Akmal Rahim Saab and his twin brother Dr. Sayyid Akmal Rahim Saab, both were foresters as well. So unfortunately he left us a few years back, but now we are associating because as a colleague we have worked together and he has worked together. So we both joined primary school, Kamal Junior Model School, American school hota tha, we joined there and we passed our childhood very lovely and enjoyed the attention of the people. लोग हमें बड़े इम्पोर्टेंस देते थे जड़वा भाई. जहाँ पे मेरी मदर जहाँ किसी फैमिली में भी जाती थी तो वहाँ पे जाके वो जड़वा बच्चे शक्लें हमारे फर्क निकालना, 6 फर्क निकालना. सो वी एंजॉयड आवर चाइल्डहुड. फिर हम सेंट्रल मॉडल में आ गए. सेंट्रल मॉडल से मैट्रिक किया, वहाँ से फिर हमने गवर्नमेंट कॉलेज FSc, BSc, MSc बॉटनी है और अकमल साहब ने वहीं से पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD. सो आप ये हमारा एक मुख्तसर सा my career, education career. So how you actually decided to become forester then after the master's in botany? जब FSc के इम्तिहान में मेरा हमारे दोनों भाइयों का ना, we couldn't get admission in medical college due to few less marks. So my mother was weeping at that time. अब बच्चे मेरे क्लर्क बन जाएंगे, ये नहीं करेंगे. वो पहले ज़माने में ये था कि डॉक्टर या इंजीनियर, कोई और प्रोफेशन को तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे. And my father used to say, ये बड़े और शोबे भी हैं, and then I'll leave it and let them complete their graduation. So मैं MSc बॉटनी कर रहा था तो मेरे घर आया. मेरे साथ मेरा कज़न अब्दुल बासित, वो भी चीफ रिटायर हुए हैं, सैयद मोहम्मद अब्दुल बासित.
तो हम दोनों वो फॉर्म लेके आए प्रोड्यूसर्स कमीशन के एंड जस्ट आस्क अस टू साइन दिस पेपर। वो अपने हमें पता नहीं था क्या था एंड वी साइंड आवर पेपर एंड ही हिमसेल्फ सबमिटेड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। At that time, forestry was not that much recognized as a profession. And we were busy in co-education, for which I have written a book on it, co-education पे। वो भी कुछ यादें कुछ बातें। So वहाँ पे एक दिन उन्होंने बताया कि आपका इंटरव्यू है। We went there and gave our interview. I stood first in the interview when results displayed. So I was the first number merit. अच्छा उस वक्त जाने को दिल नहीं कर रहा था। We are enjoying co-education, बड़े परेशान उदास, but I have to leave. Basically, because university's environment is more like open and is you are near to a hometown, so you wanted to stay here instead of going to Peshawar, which was used to be very conservative at that time. At that time, it was the first time I am leaving my house. ठीक है, होम सिकनेस भी बड़ी एक चीज होती है। सो वहाँ पे जब हम पहुँचे मेरे साथ नसीर ज़िया साहब थे, तखार कुरैशी, तारक चुगताई, हम और रास्ते में हमने शाहिद परवेज़ खान को भी पिक किया। ट्रेन बाय ट्रेन वहाँ पहुँचे और बड़े मज़े से हम वहाँ पे पेशावर पहुँच गए और सीधा ना डायरेक्टर के ऑफिस जाके रिपोर्ट की। अच्छा वी टुक इट वेरी कैजुअल। वहाँ पे हम कॉलेज हम जाके वहाँ पे बाहर एक बेंच पड़ा था, वहाँ पे बैठ गए। सो एक पतला सा सूखा सा बंदा आया, उसका नाम बाद में पता चला कायमदीन था नाम उसका, बड़ा वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। कहता है आर यू पीपल न्यू? हमने कहा नहीं है। कहता है उठ जाए यहाँ से, राजा शफाक आ गए ना तो वो वहाँ डायरेक्टर उस वक्त थे, वो डायरेक्टर नहीं थे, वहाँ लेक्चर यूनिवर्सिटी थे इस वक्त। ये राजा शफाक साहब अपने राजा उमर के वाले साहब, ठीक है, ये मैं वो बाद में फिर वो डायरेक्टर हुए, फिर डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए। उस वक्त बहादुर खान साहब डायरेक्टर थे। सो हम वहाँ खड़े हुए, हम खड़े इंतजार किया तो बहादुर अली खान साहब ने हमें अंदर बुलाया, तो हम जाके खड़े हो गए। तो तखार कुरैशी साहब जाके कुर्सी पे बैठ गए। वहाँ पे तो डायरेक्टर साहब तो कमांडेंट थे वहाँ के, उन्होंने कहा खड़े हो जो अभी से थक गए। अच्छा वो पहला झटका हमें पड़ा था डॉक्टर साहब के, वो उन्होंने जो उनको खड़ा कर दिया। So you are trying to share with us the memories of Pakistan Forest Peshawar, which is youth service academy training academy. It's very important. These things are very important. Very important. I want to tell them the discipline which we faced there. Great. राजा शफाक साहब का जो खौफ था ना, वो आप काबिले वो एलैबोरेशन नहीं हो सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता। So, जब हम वहाँ पे तो हमें उन्होंने हॉस्टल में भेज दिया। अच्छा हमारे जो सीनियर थे ना वो बड़े सीजन थे, वो उनमें ताहिर लेक साहब थे, ख्वाजा साहब थे, एक शफीक साहब थे, ये लोग बड़े सीजन किस्म के लोग थे। उन्होंने कोई भी ज़रा भी हमारे साथ वो किसी किस्म की ना ACF क्लास में, और उन्होंने किसी तरह हमें बड़ा वेलकम किया, कहा कि आप लोगों ने No. They just treated us as an officers. और कई शाम के वक्त जब हम गए तो किसी ने चप्पल पहनी थी, तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि नेक्स्ट टाइम आप चप्पल में नहीं आना, प्रॉपर ड्रेसिंग में आना। वहीं से उन्होंने हमें स्टार्ट किया। It's more like army, isn't it? हाँ, yes. हमारे जो सीनियर थे बड़े बड़े दिल के थे, तो फिर हमने ज्वाइन किया। फिर सुबह उठना, ये एक अलग इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँगा, ये बड़ी यादें हैं, ये बड़ी मज़ेदार 2 साल के वाक़े सुनाना। मैम ये ज़रूर कीजिएगा किसी नेक्स्ट टाइम आके रिकॉर्ड कीजिएगा। आपका अगला सवाल अब So I would like to ask you, sir, at what level you started your career? I first time joined Muzaffargarh Forest Division in 1984. And my first DFO was Tahir Saeed Saab. Nice. And the chief was Khanzada Saab. And I... But एक वाक्य मैं सुनाना चाहता हूँ बड़े मज़ेदार। जब I joined the department तो मैं गया ना वहाँ पे, तो उस वक्त आप लोग तो हमारी चर्बी पूरी उतरा के बेचते थे, सुक्के से होते थे, वो छोटा सा, वो कहते हैं जैसे हर चीज़ हड्डियाँ पे गोश्त भी नहीं था। तो मैं गया तो मैंने उसको एक्टर को कहा, I said I want to see my DFO। कहता काका वो सुते पे इस वक्त, तो ये सो रहे हैं, फिर आना। He took me very casual. So I went to an hotel
एंड डिड माई ब्रेकफास्ट। वापस आया तो वो फिर आ गए, मैं उसको आगे अपने ऑर्डर रख दिया। तो उसको ACF का कंसेप्ट होता था, वो एकदम खड़ा हो गया, कहता सर व्हाई यू didn't mention कि you are ACF and ये है वो ब्राउड को अगर DF सब सो रहे थे उनको जगा लाया बाहर। वो ACF की तो ऐसे ही धाक सी होती थी उस जमाने में, अब तो ऐसे सबको अपनी इज्जत का नहीं पता। उस वक्त हम बड़ा ऑनर फील करते थे। वो ACF मीन DF Such a prestigious prestigious जॉब था। तो वो पहला दिन जो उसने जो मुझे इज्जत दी ना, इट वाज फैसिनेटिंग। ठीक है, फिर आई ज्वाइन देयर, फिर मैंने वहाँ पे काम किया। अब अच्छा मजे की बात है कि माय फादर रोट अ लेटर टू हिम कि आई डोंट वांट टू सी हिम एट लाहौर, सो कीप हिम इन फॉरेस्ट। मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे रात को फॉरेस्ट में भी ले जाना। और वहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर थे फयाज बशीर साहब, उन्होंने मुझे पता चला तो उन्होंने मुझे पार्क बनाने पर लगा दिया। मुझे वो 7 ड्यूटियाँ दे दी। वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था तो वो रेफरेंडम का इंचार्ज बना दिया। उनको कहा बंदा कोई नवा आया है तो ये बड़ा, यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बड़ी रिस्पेक्ट थी डिस्ट्रिक्ट में। फिर मैं वहाँ से लाल सुहाना चला गया था सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर। वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट टाइम और टफेस्ट टाइम था। और मैं 6 महीने बाद घर जाता था। तो मैं DF I used to live inside the forest. My first conservator not in training was Chaudhry Gani साहब। उन्होंने सवाल पूछा वे विल यू लिव, मैं कहा आई विल लिव एट लाल सौरभ। कहते मसला ही खत्म। वहाँ पे तो 1-2 रास्ते चोरी के, एक पे आप बैठ जाओगे, एक को कंट्रोल कर लोगे, तो ये 100% आप कंट्रोल कर दोगे। एंड ही वाज सो हैप्पी व्हेन ही लिसन्ड के आई एम गोइंग टू स्टे एट लाल सुहाना। हाँ, ये अप्रिशिएटेड। अब मैं वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के अपने 2 साल दिन रात बगैर बिजली के वहाँ गुजारे। और ये इसकी भी अलग कहानी है, बड़ी मज़ेदार। और फिर मेरा वहाँ पे चौधरी नायतुल्ला साहब थे, हमारे बड़े अच्छे वो थे चीफ, लेकिन उनकी एक अपनी साइकी होती थी, तो उनके साथ मेरी नहीं बनी। तो देन आई गॉट माई सेल्फ शिफ्टेड टू फैसलाबाद। मलिक मोहम्मद खान साहब ने, दिस इज वाज माय सेकंड पोस्टिंग, फर्स्ट वाज द ट्रेनिंग and then Malik Mohammad Khan साहब was the DFO, so I was the park in charge of Gatwala Park। मैंने उसको बन रहा था तो मैं फैसलाबाद। सो वो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। वो मुझे शाम को मलिक साहब चनाब क्लब भेजते थे शाम को टेनिस खेलने। और वो उनकी भी एक आदत बड़ी अच्छी थी। हमारे कमिश्नर के दफ्तर गए, मुझे हाथ पकड़ा, सीधा अंदर गए, कोई प्रोटोकॉल नहीं करते थे। वो अपने आप को भी कमिश्नर समझते थे मलिक साहब। तो वही चीज़ें हमें भी देखिए, जब जिसके साथ अटैच होते हैं वही सीखते हैं। मियां मर्शी साहब थे, वो बड़े टफ थे, बड़े फील्ड के कीड़े थे, बड़ा वो एक चीज़ देखते थे। सो आई लर्न माई बेसिक फर्स्टी फ्रॉम मियां मर्शी एंड आई लर्न कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मलिक मोहम्मद खान। राधा कोल्ला कमीशन साहब उठ के उनको देख के खड़े हो गए। शेरदिल खान साहब थे, अच्छा वो खड़े हो गए उनको मलिक साहब को देख के। मलिक साहब की पर्सनैलिटी भी बड़ी थी। तो उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया, उनसे कहते ही इज माई न्यू कलीग। डिडंट से कि मैं ये सबॉर्डिनेट है या ये। मैं आगे एक वाक़या सुनाऊंगा जो एक हमारे ऑफिसर ने किया था। सो वो बड़ा फैसिनेटिंग था। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि नेक्स्ट टाइम ही विल कम इन माई ऑन माई बिहाफ। अच्छा चले, मैं टेनिस खेला, वहाँ से मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज ए DFO अरेंजमेंट हुई। उस पर भी मैंने वहाँ पे बखर मैं भी आता हूँ सर। वहाँ पे अरेंजमेंट में था तो मैंने कालू वाला एक ड्रिप इरिगेशन का प्रोजेक्ट, वो जो फेल हो रहा था, बिजली नहीं जा रही थी। माय फादर आस्क्ड मी टू कांटेक्ट GM ऑफ वापडा, नियाजी साहब। मैं उनको मिला जाके, उनका बेटा पहले क्यों नहीं बताते। वापस आया तो एक्शन साहब मेरे दफ्तर बैठे हुए थे, कहते बेटा कहाँ लगाने हैं। ठीक है, मैं ऊपर से वो 10 दिन के अंदर खंबे भी लग गए, बिजली भी चली गई। एंड इट वाज कोऑर्डिनेशन इट वाज ड्यू टू माय फादर दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन टाइम। एंड खानजा साहब एज ए सेक्रेटरी केम देयर एंड एप्रिशिएटेड मी। बल्कि उन्होंने मुझे थपकाया भी। और अकमल साहब थे वहाँ पे जंग में, तो वो हमारी शक्लों का फर्क भी निकाल देते। सो इट वाज गुड टाइम। एंड इन मीन टाइम दुनिया की पहली, पाकिस्तान की पहली फर्स्टर खतून एज ए ट्रेनिंग वो मेरे पास तशरीफ लाई। उनका नाम था मैमूना वली, पास आई MSc की।
तो उसमें एक बड़ी खतून थी, बड़ी स्मार्ट सी और बड़ी एक्टिव, बड़ी थी। मैं हैरान हुआ, मैंने पूछा आप कौन है? तो कहती मेरा नाम मैमूना वली है और मेरे फादर फॉरेस्ट में है एंड आई जॉइन दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट and you I was surprised at that time. This was she was the first woman lady in forest department and you have honored this. अच्छा मजे की बात है, डॉक्टर कोटरी में इनको लेके गया पैदल। अच्छा मैं कहा भी ये बेहोश होके गिरेगी, ये बेहोश होके गिरेगी। मैंने इनको बड़ा कहा गाड़ी में बैठी, बट वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठ रही थी, मैं पैदल चलनी, मैं फ्रस्टर हूँ। सो इनके साथ 3 दिन गुजारे एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड एट दैट टाइम। उस वक्त शी कंसिडर्ड मी एज अ टीचर। फिर मैं वहाँ पे शावर भी आता था, वहाँ पे आप लोगों का वाइवा भी लिया। उसके बाद मैं वहाँ से मेरी ना काम थे इस तरह के कि मुझे मियाँ शमीम साहब मेरे कंजर्वेटर थे, तो खान अखलाक साहब चीफ थे। खान अखलाक साहब सख्त से थे, तो वो मिनिस्टर को लेके आए वहाँ पे। तो मेरी नर्सियाँ बहुत अच्छी, मैं नारायण सैर पे गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। तो उन्होंने कहा हु इज़ ऑफिसर वर्किंग है, इतना अच्छा काम नर्सियों का। और दूसरा वो हफ्ते बाद फरीदुद्दीन साहब सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे सांगा मांगा लगा दिया। इन 3.5 years service, for 5 years service, I was posted as a DFO and I was the junior most person in the history of Changamanga plantation who was posted as a DFO, and it was a big challenge for me and people are scaring me. वो कह रहे थे ना जाना, वहाँ पे बड़े हालात खराब हैं, ये It's the oldest plantation of Pakistan and it was really challenging to work in that plantation. तो वहाँ पे मैंने 7 साल गुजारे और मेरी ज़िंदगी के वहाँ पे मैंने बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सख्ती थी, बड़ी रखी हुई थी। और मैंने वहीं पे अपना वायरलेस सिस्टम अप्रूव कराया। ड्यू टू माय फादर आई गॉट वायरलेस सिस्टम। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी, यानी अगर वो डिटेल वो किताब में दी है। Sir, this is I appreciate that your father was there, but I have heard many things and I observed that in your forest department with coordination, many people you don't know, but you are able to work things done. So this really coordination matter, and as a forest department employee, this is a big asset to have this thing. That you have been. Dr. Sabha, the thing which you imparted us in the PFI, it was the confidence level. Given by your training. Which given you, particularly Raga Shwak. वो बूस्ट भी करते थे और रगड़ा भी लगाते थे। एक हमें उन्होंने कह दे कि अब अपनी हमारी सर्विस को उन्होंने बड़ा अपलिफ्ट करके हमें ज़हनी तौर पे भेजा। तो हम लोग किसी को खातर में नहीं लाते थे। एक चीज़ दिमाग में डाला था कि वी आर दी ओनली पर्सन, 3 सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट। नंबर 1 आर्मी, वो अकेडमी पे आती है। नंबर 2 CS, नंबर 3 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो यू पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। हमारे दिमाग में ये डालते थे यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। सो एंड यू हैव प्रूव्ड इट सर। अच्छा चांगामांगा मेरे 7 साल थे। देन मरी चला गया, फिर मैं अटक पोस्टिंग वहाँ पे ड्राईफॉल स्टेशन। तो आगे मैं फिर आगा पूछते हैं तो वेरी नाइस। सो रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू सर, because this is the, because I already discussed with you that he has worked in all the diverse field of forestry management and forest department in Punjab. Sir, I would like to ask you what really, because I feel that you like and love each and every part of your job, but still I would like to ask which part you will say that is the favorite part of your job. My favorite part was working in irrigated plantation and administration. And then I enjoyed working plan also. First working plan I wrote cantonment forest. You wrote, I think, more than... I wrote 7 working plans. 7. Major This plantation. Really credit yours. That working plan is the document which tells you about next 10 years or 20 years about the management of forest. And only those people or forest officers are able to write who have the command on the management and silviculture and all aspects of forestry. So मैं एक पहाड़ी इलाके का लिखा and next IP plantations. And one thing I want to clarify here, before writing working plan, my concepts were not clear. Every time I just do work on the administration basis, not on technical basis. I was very good in administration. Then when I wrote a working plan, वो कहते हैं concepts के दरवाजे खुलते गए, ठीक है ना। फिर मैंने मेरी पोस्टिंग लाहौर में हुई, तो मैं एज ए कंजर्वेटर, अच्छा पहले
डॉक्टर साहब का ये होता था कि ग्रेड 18 से 19 में जाने के लिए आपको वर्किंग प्लान लिखना होता था, तो मेरे जेल में बैठा था कि मैंने वर्किंग प्लान लिखना है, तब प्रमोशन होना। As soon as possible. अच्छा, मैं जब मैंने फर्स्ट छांगा मांगा का लिखा, मुझे बड़ा मजा आया। उस पर मियाँ रियाजुल हक मुझे बड़ा गाइड किया। मैं साहिवाल चला गया उनके पास, वो आईपी प्लांटेशन पहला जो पहाड़ी इलाके का लिखा था ना, वो मरी का, तो मैं राजा तावला को साथ कंसल्ट किया था। एंड व्हेन आई रोट पिपली पार्ट प्लांटेशन एंड छांगा मंगा, आई कंसल्टेड मियाँ रियाजुल हक। ही इज द बेस्ट वर्कर इन द इरिगेटेड प्लांटेशन। मैं आई लर्न अ लॉट फ्रॉम। उसके बाद मुझे चस्का पड़ गया। देन शोरकोट, कुमालिया, एज ए कंजर्वेटर सरगोदा आई रोड कुंदिया प्लांटेशन, ठीक है, डफर प्लांटेशन। सो इस पर मेरे इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए कि उसके बाद तो मैं फिर जब आप लोग बुलाते थे तो मैं बच्चों को, I remember the irrigation during even our training, that the layout of the irrigation channels and irrigation plantation is the toughest job. What? Many even senior officers are very scared from this doing this. So I have observed this, that you really tell students, also teach students this layout in a very beautiful manner and very simple manner. So that's it. then I want to explain that when I joined forest department, my concept was not clear about the irrigated plantation. Even I don't know how to lay out. As a SDFO, I don't know how to lay out the Because this is irrigation practical system. thing, and as soon you do this practical, So then you learn वहाँ it. पे RFO फीजुल्ला साहब होते थे, बाद में DFO रिटायरमेंट डेथ होगी, उनके साथ बैठ के मैंने ना इरिगेटेड प्लांटेशन को समझना शुरू किया। फिर जब क्लासेस मेरे पास सांगामांग आती थी तो मैंने कहा बच्चों को, जब आई फेल टू क्लियर माय कंसेप्ट इन द फॉरेस्ट कॉलेज, सो हाउ मेक इट इजी फॉर देम। तो मैंने यू हैव ऑब्जर्व दैट आई हैव मेड अ मॉडल ऑन द Modern, yes. प्रैक्टिकली, फिर मॉडल पे समझाना, फिर स्लाइडें समझाना, फिर अब तो लैप वो आ गए हैं, पावर पॉइंट आ गया तो बड़ा आसान हो गया। तो उस वक्त मैं जमीन पे मॉडल बना के ना बच्चों को, और फिर असाइनमेंट ग्राफ पे देता था। तो वो फिर अच्छा, उस वक्त मैं पेपर भी बनाता था। वो 10-10 नंबर के सवाल होते, मैं उसको 20 नंबर देता था कि 20 नंबर का सवाल एक कंपल्सरी होता था, जो करना होता कि लेआउट ऑफ इरिगेशन सिस्टम आप ग्राफ पे बना के साथ लगाएं। बहुत अच्छा। So sir, have you ever felt sometimes scary or any scariest moment during your job? नो, एक चीज थी जॉब में कि जो डिसिप्लिन था ना, वो हम लोग बड़े स्ट्रिक्ट थे। फील्ड में जाना और खाकी कपड़े पहन के जाना, हमारे सीनियर भी खाकी कपड़े पहने जाना। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, जो बच्चे आने शुरू हुए, वो आप भी जानते हैं, वो आके ट्रेनिंग नहीं लेते थे, पोस्टिंग करवाते थे, घरों में बैठते, और जब पोस्टिंग होती तो वो जाके, और उनका मकसद ही था, मेरा मतलब मैं उनको अब क्या इसको एक्सप्लेन करूँ, वो कैजुअल बिहेवियर उनमें आना शुरू हो गया, और फिर एक साजिशी माहौल शुरू हो गया। आला मियां को जन्नत नसीब करे, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम इन दिस प्रोग्राम। वो ही स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इंट्रीग इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ही वाज जूनियर पर्सन, और उन्होंने अपने सीनियर की टांगें खींच के पहले ऊपर आने की कोशिश की, और फिर उन्होंने अपनी एक फौज तैयार की। सेम हैपेंड विद मी। मैं मुझसे 8-10 बंदे जूनियर थे, तो मुझे एक केस में इंडल्ज करा के ना मुझे एक साइड पे किया, वो ऊपर आते रहे। अब आप मुझे बताएं, सबसे बुरा वक्त उस वक्त होता है जब आपके हाथ के पले हुए बच्चे, आपके जूनियर, आपके सबॉर्डिनेट आपके ऊपर आके बैठ जाए, और फिर उनको, अच्छा, फिर ये बड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा काउंट करता था। वो मुझसे ना गुस्सा निकालने के अपने करने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरी भी तरबियत उस तरह की थी। मैं आई आल्सो गिवन टफ टाइम टू एज ए सबॉर्डिनेट। सो वो चीजें थी। अच्छा, मजे की बात है, जिन्होंने ये काम किया ना, दे बैडली फेल्ड, अब खुद फंसे हुए हैं इस बात पे। मैं अपना एज ए चीफ कंजर्वेटर रिटायर हुआ। Yes, sir. वो मेरे जो थे ना, मुश्किल टाइम था। So, sir, you have mentioned few things in your interview, but would you like to specifically mention 3 main characteristics which are necessary or must for a forester? हाँ, हमारे एक चीफ होते थे चौधरी सलीम साहब, तो वो कहते थे फॉरेस्टर्स के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए। नंबर 1, उसकी खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। Oh, good food. वो बाद में आई विल टेल यू लेटर थ्री, Oh. बट आई वांट टू एक्सप्लेन हिज वर्जन। फूड इसलिए कि आपने एक्सर्ट करना, देन आपका बिस्तरा बहुत अच्छा होना चाहिए, स्लीपिंग बेड इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल। जब आप थके आ रहे हैं तो यू कैन स्लीप प्रॉपर्ली। Okay.
ठीक है, एंड थर्ड योर वाइफ शुड बी कोऑपरेटिव। Okay. अगर वो घर आके आपको कोऑपरेट ना करे तो वो तो आपका जीना हराम हो जाए। So then- एंड फोर्थ थिंग यू शुड हैव अ कंफर्टेबल शूज। ठीक है, तो ये तीन चीजें, एक तो मैं डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं करता। डिसिप्लिन कामयाबी के लिए डिसिप्लिन है कि ये नहीं है। मेरे एक आदत होती थी, मैं सुबह जो 7 बजे का टाइम दिया हुआ ना, मीन 7:55 और मैं छोड़ के चला जाता था। उसकी वजह से एक साहब मेरे बड़े दुश्मन बने, मेरी बढ़िया उन्होंने जड़ें काटी कि जी मुझे उसको बड़ा टफ टाइम देते थे, तो मैं छोड़ जाता था। ठीक है, लेकिन मैंने चांगा मांगा में भी एक वही माहौल बनाया हुआ था, सारा दिन हम फिरना। 3 बजे उन्होंने स्विमिंग पूल पे आ जाना, सब ने अंडर ट्रेनिंग, मैं हमेशा अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स रखता था और उनको स्विमिंग करानी। शाम को मैंने एक क्लब सा बनाया हुआ था, वहाँ पे वो नई नई डिश आई हुई थी, टेबल टेनिस रखी हुई थी, तो पूरा माहौल बच्चों को अंडर ट्रेनिंग वालों को दिया था। मैं उन बच्चों में का नाम बताना चाहूँगा। आई वांट टू मेंशन द नेम ऑफ फर्स्ट ज़मीर खान थे, अतर शाह खग्गा, मुकीद खान, नवाज संदीला, नियाज अहमद, राजा उमर, ये अपना जो कंजर्वेटिव आजकल है शेख साकब and Qasim. These people worked with me at Changamanga, and then I went Murray, and there are a lot of range officers attached with me. Total 11 range officers were attached with me. So I have a big army in the field who started their services with me. Sir, you are mentioning many names, all are male forester. I would like to know what is your हाँ, take about अच्छा। having female in the forest department. अच्छा, जब You mentioned one female. One female. I want And to the tell first- that when she joined the PFI as a teacher, she used to come with the class and for the study tour. तो ये सारा दिन बड़ा she always used to say कि इनको टफ टाइम देना। मैं थोड़े आप था नहीं, पैदल चलाना है इनको, ये करना, चलता करना। अच्छा, शाम को जब फ्री तो मुझे कहती है मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने जंगल में रात को पेट्रोलिंग करनी। मैं आई नो, मैं परेशान, मैं क्या डॉक्टर साहब, उस वक्त ये डॉक्टर नहीं थी उस वक्त, तो मैं क्या मैम ये रात को आपका काम नहीं, मैं रात को पेट्रोलिंग करनी। अच्छा वो, अच्छा मजे की बात है, ये गाड़ी खुद चलानी, मैंने साथ बैठे ना, मैं कभी ये खड्डे में ना मार दें या नहर में ना डाल दें बस। अच्छा, मैं स्टाफ को भी अलर्ट रखता था, बट शी वाज सो बोल्ड कि कोई डर खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं। जंगलों में उतर के फिर मैं अपना कभी किसी को रेड करनी, वो घुस जाना स्टाफ के साथ। मैं देखती हूँ लकड़ी, मैं गाड़ी में बैठ के देखता था, मैंने कहा इसको क्या हो गया, बट शी शुड बी इन द फील्ड नॉट। So what about the other ladies? This is specifically about the वो बाद में वो एक 3-4 आई थी, वो बेहोश हो जाती थी फील्ड में, वो कड़वाड़ा नहीं चलाती आइंदा फिर थी। इसका मतलब है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। मम्मी डैडी जब से आए ना फॉरेस्ट्री में, मम्मी डैडी बर्गर फैमिली का भाई, फीमेल मेल फीमेल बोथ, तो उन्होंने आके ना हमारी सर्विस को ना काफी डैमेज। फीमेल शुड कम, कैन कम इफ दे आर। हाँ, हमारे भी एक बच्ची बड़ी अच्छी और फ्यूचर की चीफ नजर आती है, वो फातिमा नाम है उसका। हाँ, वो आप मिली होंगी। स्टूडेंट, आपकी स्टूडेंट है। और भी हाँ, एक डॉक्टर नहीं वो जो हमारी है GS अकीला, डॉक्टर अकीला, वो भी आपके साथ। और उसके बाद वहाँ पे बैठी हैं निगत। So you have मैडम निगत also. हाँ, और एक बड़ी अच्छी बच्ची थी, she died now, उसका नाम था रूज। So you उसने have मेरे साथ Punjab काम forest किया। department, you have many female, हाँ। and recently if you have और अभी ये मैंने अभी रिसेंटली आई हैव नॉट सीन, मुझे पता चला कि वहाँ पे पिंडी में भी एक फीमेल एज SDF वो पहाड़ी इलाके में काम करती है, हाँ, और उसने काफी वहाँ she is also पे PhD, PhD. मैडम डॉक्टर सायरा. डॉक्टर साहिरा, I have not met her, maybe I have met her in the PFI. Yes. Okay. So and to sum up, can you tell us that what are the challenges in the coming years or the new age which foresters are confronted with? देखें, जो नए फॉरेस्टर्स, मैं इस पे बड़ा आप अक्सर आप टीवी पे भी कहता हूँ, ये जो नए फॉरेस्टर्स आए ना, उन्होंने अपनी बेसिक फॉरेस्ट्री छोड़ दी हुई है, और वो बस वही एक रेड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये जो चोंचले है ना, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं है, डेवलप्ड कंट्री के हैं।
अभी वी आर वर्किंग, वी आर रेजिंग द फॉरेस्ट, लोगों की वहाँ पे काफ़ी सोशल लाइफ डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट में फायरवुड भी चाहिए। अब वो एक नया कंसेप्ट लोग, एक तो हमारे डिपार्टमेंट में जो सबसे बुरी चीज़ है कि ओनली फ्यू पर्सन यूज टू गो अब्रॉड, वही 4-5 रट्टे पट्टे लोग जाते हैं बाहर होके आते हैं, हर एक को चांस नहीं मिलता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और ऊपर से उन्होंने अपनी अकेडमी बना दी, ठीक है, एंड आई वाज अगेंस्ट द अकेडमी कि जब पीएफआई है तो फिर अकेडमी की क्या जरूरत है, क्या वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी है आपने। सो एक देखें आप, इस तरह मैं बात को मिसाल देता हूँ कि लेफ्टिनेंट एक आता है आर्मी का, क्या वो प्राइवेट ट्रेनिंग लेके ज्वाइन कर सकता है? आर्मी में जाते वो जो वहाँ का माहौल है ना, बाय असिमिनेशन, वो जो अंदर आपके दाखिल होता है, हड्डियाँ आपकी मजबूत करता है, आपको वहाँ का फ्रस्टर बनाता है। अब वो लोगों ने क्या फील्ड में काम करना है, तो सो दे हैव ruined our first year. Thank you, sir. Sir, I would also like to ask you what advice you will like to give people who want to be future forester. वो एक तो फील्ड में जरूर जाएं अपना, मैंने वो एक मॉड्यूल बना के दिया है कि रोटेशन जैसे आर्मी में रोटेट Before करते हैं। before entering forest department, how they should plan, because nowadays students emerging, you know, they देखिए, used to ask. वो ये फिर डिपेंड करता है कि वो लोग जो सेहतमंद भी हों, Tough. हाँ, और जिनको फियर ना हो। Fear. फियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द फोबिया, फॉरेस्ट Darkness फोबिया, phobia. वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है। अभी एक फ्रस्टर हमारा एमएससी को आया, तो वो कहता मैं आई कांट वर्क इन दी डस्ट, आई कांट वर्क एट नाइट, सो वी मम्मी डैडी, तो उसको भी लिया तो ये चीज़ें वो आप थोड़ा सा इसको स्क्रूटिनाइज करें और पीएफआई को वापस लाया जाए सेंटर को। Thank you very much, sir. Thank you. I really appreciate. Thank you very much, viewers. So you have heard Chief Conservator Forest say that Rahim Saab. Thank you very much, sir, for your time, and I hope we meet again in some other session. I have left a lot of things, ma'am. So I need another interview for Sure. detailed discussion. मैं आपको अभी वाक्य नहीं सुनाया That आपने। will be honor for us, sir. Thank you, sir. And thank you came here Thank you. and honored me for the first interview. Thank you, sir. Thank you, sir.